exercise 2.1 of chapter 2 polynomial. First question is, which of the following expressions are polynomial in one variable and which are not? State reasons for your answer. We have 5 algebraic expression. We have to show which is the polynomial in one variable and which are not. First is 4x square minus 3x plus 7. अब इसमें देख सकते हो एक ही वेरिएबल है x square. There is only one variable. Therefore, this expression is a polynomial in one variable. Second is y square plus root 2. In this expression, y is a variable. So, this expression is a polynomial in one variable. In third, three root t plus t root 2. Rewrite this expression like this. Half. Root means power half plus t root 2. In this, since exponent of variable t in first term t 3t power half is 1 upon 2. 1 upon 2 is not a whole number. Therefore, this expression is not a polynomial in one variable. वन वेरिएबल के लिए तो वन वेरिएबल एक ही होना चाहिए. जैसे इसमें देख सकते हो आप एक्स वाई टी है, तो दिस पॉलिनोमियल इन थ्री वेरिएबल एक्स वाई एंड टी. तो ये भी एक में नहीं है. अब दूसरी बात, जैसे ये एक में है, ये एक में है, यहां भी दोनों में टी है, लेकिन सेकंड कंडीशन ये है कि किसी भी वेरिएबल की पावर जो है वो होल नंबर होनी चाहिए. अब यहाँ रूट है, रूट टी रूट में है, तो रूट को क्या करोगे आप, पावर हाफ. तो 1 upon 2 जो है ये होल नंबर नहीं है. सो वी कैन से दिस एक्सप्रेशन इज नॉट ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल. फोर्थ में भी ऐसा ही है. देखो y plus 2 upon y on rewriting y plus 2y inverse. Since exponent of variable y in second term is minus 1, which is not a whole number, that is why this expression is not a polynomial in one variable. Fifth is, there are three variables x, y and t in given algebraic expression. So this is not a polynomial in one variable. ये क्वेश्चन हो गया आपका फर्स्ट. इस तरह से आप कर सकते हो, लिखना वही है. दिस एक्सप्रेशन इज ए polynomial in one variable x. This expression is a polynomial in one variable y. और इनके लिए मैंने आपको बता दिया कि here in first term of algebraic expression the power of variable is not a whole number. That is why this is not a polynomial in one variable. Similarly, in 4 y plus 2y, if y की पावर यहाँ प्लस 1 है तो हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो कितने हो जाएगी, y माइनस 1 जाएगी. तो हम लिखेंगे since exponent of variable y in second term is minus 1, which is not a whole number, that is why this is not a polynomial in one variable. और यहाँ आपको दिख रहा है कि x, y, t 3 polynomial है, तो there are 3 polynomial in given algebraic expression, that is why it is not a polynomial in one variable. इस तरह से आप कर सकते हो इसको. देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड. सेकंड क्वेश्चन इज, write the coefficients of x square in each of the following एक्सप्रेशन. ये दे रखा है. अब इसमें हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर जहां भी है उसके साथ में मल्टीप्लाई में क्या है, वो हो जाएगा उसका कोएफिशिएंट. तो देखो फर्स्ट ये कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज 1. यहां इसके देखो, एक तो क्या है, एक तो पावर जो भी वेरिएबल की पावर जो है जहां कुछ भी नहीं है इसका मतलब पावर 1 है.
और कोएफिशिएंट साथ में कोई भी रियल नंबर मल्टीप्लाई में नहीं है, इट मींस कोएफिशिएंट वहां 1 है, तो यहाँ 1 है, यहाँ 1 ही है, लेकिन हमें सिर्फ एक्स स्क्वायर का लिखना है। तो अब यहाँ देखो, यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर है, इट मींस सेकंड में क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन, ये एक्सप्रेशन लिखोगे आप पॉलिनोमियल, और इसमें लिखोगे इज -1, यहाँ -1 है, यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन पाई बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज पाई बाई 2। एंड फोर्थ में यहाँ देखो एक्स स्क्वायर का टर्म है ही नहीं, इट मींस इसको आप रीराइट करो तो आप ऐसे लिख सकते हो 0x² प्लस √2x - 1, therefore coefficient of x square will be 0 in this polynomial. So second question is over. Let's see third question. Third question is, give one example each of a binomial of degree 35 and of a monomial of degree 100. अब यहाँ देखो दो चीजें आई आपके पास, एक तो मोनोमियल, एक बाइनोमियल। A polynomial having only one term is called monomial. Mono means होता है 1, bi means आप याद रखो 2, bi means होता है 2, तो binomial means a polynomial having two terms is called binomial. अब डिग्री है, डिग्री क्या है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ दैट polynomial. So we have to write binomial of degree 35 and monomial of degree 100. Monomial means one term रखना है, binomial means two term रखना है। तो आप देख सकते हो इसमें binomial of degree 35 is written as, अब आपको उसके दो टर्म चाहिए हमें, जैसे आपने ले लिया x प्लस x, ठीक है, यहाँ आपने कर दिया 3, यहाँ कर दिया आगे 2, तो दो टर्म हो गए। अब हमें क्या करना है, डिग्री इसकी 35 होनी चाहिए, इसमें जैसे पावर जो है हाई पावर 35 होनी चाहिए, तो यहाँ और कुछ ले सकते हो आप, जैसे यहाँ पावर ले ली 30, या नहीं लो तो भी चल जाएगा, लेकिन x की हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, 35 होनी चाहिए। तो फिर मोनोमियल of degree 100 is written as, लिख दो आप, जैसे यहाँ ले लिया आपने 7x की पावर 100 ले लो, अब डिग्री 100 होगी और वन टर्म है इसलिए मोनोमियल हो गया, यहाँ टू टर्म है तो बाइनोमियल हो गया, और x की हाईएस्ट पावर कितनी है 35 है, इसका मतलब डिग्री कितनी होगी 35 होगी, ठीक है। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4. Question number 4 is, write the degree of each of the following polynomials. What is degree? Degree of a polynomial is highest power of exponent. It means since, देखो कौन सा कोई सा भी इक्वेशन ले लो, जैसे इसमें है तो since क्या लिखोगे, highest power of variable x is 3. So degree of this polynomial is 3. बस इतना ही काम करना आपको। यहां से मैसेज रहेगा since highest power of variable y is 2, so degree of this polynomial is 2. 5t, अब देखो ये तो क्या है, बाइनोमियल है और यहाँ पावर कितनी है 1 है, तो जहां वेरिएबल पावर 1 होती है तो वो क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल होता है। तो यहाँ जो वेरिएबल है t है, t की हाईएस्ट पावर 1 है, तो इसकी डिग्री हो गई 1। और यहाँ देखिए, यहाँ ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल को हम इस तरह से लिख सकते हैं आप 3x की पावर 0। इट मीन्स कांस्टेंट टर्म की जो डिग्री होती है वो ऑलवेज 0 होती है। तो आप इस तरह से आप ये क्वेश्चन है जो कर लेना आप। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक
एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब लीनियर में आप जानते होंगे जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी होती है, 1 होती है। यहाँ वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी 2 तो हो जाएगा क्वाड्रेटिक, और वेरिएबल की हाईएस्ट पावर अगर 3 होगी तो हो जाएगा क्यूबिक। अब यहाँ देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल as its degree is 2। अब यहाँ देखिए x माइनस एक्स क्यूब ये बाइनोमियल है लेकिन डिग्री कितनी है, 3। इज ए पॉलिनोमियल एज क्या है ये, क्यूबिक पॉलिनोमियल, इज ए क्यूबिक पॉलिनोमियल सिंस इट डिग्री इज 3, यहाँ रहेगी 3। फिर यहां y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एज इट्स डिग्री इज 2। 1 प्लस x इज ए लीनियर पॉलिनोमियल सिंस इट्स डिग्री इज 1, हाईएस्ट पावर कितनी है यहाँ 1 है। यहाँ 3d इज ए लीनियर पॉलिनोमियल, ये हो जाएगा इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और ये हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल हम क्लासिफाई करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल की पावर देखनी है। जितनी हाईएस्ट पावर होगी उस हिसाब से, अगर 1 है तो हो जाएगा लीनियर, हाईएस्ट पावर 2 है तो हो जाएगा क्वाड्रेटिक, और हाईएस्ट पावर अगर 3 है तो हो जाएगा क्यूबिक, और हाईएस्ट पावर अगर 4 हो तो हो जाएगा बाई क्वाड्रेटिक। तो इस तरह से आप कर सकते हो इसको क्वेश्चन। और ये जो आपके एक्सरसाइज 2.1 है ओवर।